Okay, let me start the things. Now, 15-20 minutes. I will give you a little bit difficult questions. Huh? So try to solve this one. You take down this question first, and please, without saying, you try to solve it. If you are not following, it's okay. Let me see. What is the critical gradient of a sand deposit of specific gravity 2.6? White's ratio is this much. White's ratio is given. G is given. Find the critical gradient. Please do it. Critical gradient is given by yesterday. I taught you G minus 1 upon 1 plus E. Please solve it. सभी लोग करो. Some different type of problems today. I mean, within 15-20 minutes I will solve, and after this we will go for what? We will go for consolidation. Okay, करो जरा problem करो देखेंगे. Let me see. You do it yourself. If I say it is like that, it is like this, means you won't follow it. So you do it. Take the calculator, pen, and solve this. And solve this. What is the critical gradient of a sand deposit of specific gravity this much? Yeah, somebody did it and it is right, Mansi. It is 1.03. It is very simple. I critical is equal to G minus 1 divided by 1 plus E. G is 2.65 minus 1 divided by 1 plus 0.6. So that is 1.03. 1.03. 1.03. Okay. You take down this question, please, and solve it. A dam is provided. A dam is provided with sheet pile walls. A dam is provided with sheet piles which extend halfway into an impervious stratum. A dam is provided with sheet piles which extend halfway into an impervious stratum. The water head is 14 meter, is H on the upstream side, 2 meter on the downstream side. Okay, it is 2 meter on the downstream side, means H when you take means 14 minus 2 you have to take. Till now, whatever the problems we did, there on the downstream side it was 0. But here the water head on the downstream side also given, it is 2 meter. On the upstream side it is 14 meter. 14 minus 2 is 12. From a flow net on a transformed scale, it is found that there are 6 flow paths, NF 6, and 18 potential traps. ND is equal to 18. Calculate the seepage through the dam of average value coefficient of permeability as 6 into 10 to the power minus 6 meter per second horizontally and 2 into 10 to the power minus 6 meter per second vertically. Do it, please. Do it, please. कुछ नया नहीं है इसमें. KH दिया, KV दिया, तो K निकालो. K is equal to under root of KH into KV. एक बार Q आ गया. H में आपको बोला अपस्ट्रीम हेड माइनस डाउनस्ट्रीम हेड. अब तक जो भी प्रॉब्लम करे डाउनस्ट्रीम हेड 0 था, तो that also you will get KHI. NF is 6, ND is 18. Without seeing, please do it. I want practice from your side also, because you people never try in the home on yourself. थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस है यही हो जाता आपको. ओके निकिता, खुद बटा. अदर्स
Yes, do it and tell me the answer. Please do it yourself. Okay, Sonali. Uday also did. Yes, right. Yes, Nehal Patil also did. Huh? So it's very simple. X means horizontal, KZ means vertical here. KH is this much, KV is this much. So K is equal to under root of KH into KV. So you will get K here. Once you get K, NF is 6, ND is 18, H is equal to 14 minus 2, 12. And if you substitute all these values here, Q is equal to KH NF by ND, you will get this value. You will get this value. Okay, shall I go for next question? Thoda. Yes, beta, Mansi. So now next one. देखो ये भी same है. A flownet drawn for seepage flow below a dam has 4 flow channels. NF is 4 and 9 equipotential line. N D is equal to 9. There is 8 meter water in the upstream and no water on the downstream. Means H is equal to 8 meter only. There is 8 meter of water on the upstream side and no water on the downstream side, means H is equal to 8. Below the dam has KX diya, KY diya. Calculate the seepage law per day for every 100 meter length. ये तो मैं करूंगा, आप सिंपल क्यों निकालो बस. कैलकुलेट द सीपेज लॉ पर डे मैं निकालूंगा या देखेंगे क्या है, आप ये करो बस ऐसे सिर्फ उतना. Okay, Uday, let me see others.
Okay, Nikita, I think it's right. Yes, right, it is. So, no, kx is this much, ky is this much, this is k, and q is 1.13. I got, you got 1.0, it is okay. But what the answers he want is, that is I will explain afterwards. Whatever q you got is right, huh? But what answer he wants, that I will tell you. Okay, Mansi, right? Okay, what I got, the you got the answer is right, बिल्कुल. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो what he asked in the question. क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, पर डे विचारलंय म्हणजे तर 24 ने इंटू करावं लागणार ना. येस, पर डे आणि लेंथ किती विचारलाय, फॉर एव्हरी 100 मीटर लेंथ, पर डे फॉर एव्हरी 100 मीटर लेंथ बेटा. तर इथं बघा क्यू इज हे पर सेकंड पर मीटर आहे. आता आम्हाला जे आन्सर येते क्यू हे मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर आहे. तर त्याला काय पाहिजे, पर डे पर 100 मीटर पाहिजे. तर कसं करायचं, पहिले तुम्ही सेकंडला पर डे मध्ये कन्वर्ट करा. पहिले सेकंडला पर डे मध्ये कन्वर्ट करा आणि करू ना त्याला पर मीटर मध्ये करा. 100 मीटर म्हणजे 100 ने मल्टिप्लाय करा. सो ट्राय टू गेट दिस आन्सर, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, ट्राय करून बघा. व्हाट ही वांट्स इज, व्हाट यू गॉट द आन्सर इज मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर लेंथ ऑफ दी. मीटर क्यूब per second per meter length of the. You have to convert this into per day per meter length of the. ऐसा करना पड़ता है. देखो आप कोशिश करो समझने की, नहीं आया तो मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको. तर एनडी ची व्हॅल्यू 9 आहे ना, इथे 8 आहे. 9 आहे काय बेटा? येस सर. लेट मी सी, मी काय तर चूक केलो का बघतो. there is 8 meter of water below the kx दिया 4 lengths. 9 इक्विपोटेन्शियल लाइन्स. हो इथं जरा अंडरलाइन करून घ्यायला. माझा आन्सर तुमचा आन्सर काय डिफरंट ठेवलं सांगू मी तुम्हाला. ये ड्रॉप्स नहीं है बेटा, एन डी नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है. तो दो लाइन के बीच में एक ड्रॉप रहता. और अगर से 9 लाइन्स है तो ड्रॉप्स कितने होते मालूम है, 8 होते. ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो अब आप दो लाइन बनाओ तो दो लाइंस के बीच में एक इंटरवल आता. 3 लाइंस बनाओ तो कितने इंटरवल होते, 2 होते. 4 लाइंस वर्टिकली ड्रॉ करो तो इंटरवल कितने होते, 3 होते. 5 लाइंस ड्रॉ करो इंटरवल 4 होते. वैसा ही यहाँ पर ये 9 कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा देता. ये ड्रॉप नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है. 9 क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइंस है. तो जर तिथे ड्रॉप असते तर मग 9 घेतलं असतं का आपण? 9 घेतल्या करता तुमचा आन्सर माझा आन्सर थोडा वेगळा येऊन आहे. तर हे 8 पाहिजे बेटा. 8 घेऊन करा. पण आठवण तर ठेवा 8 म्हण कसं घेतो हे आठवण ठेवा. आणि आता करा, हे आन्सर येत आहे. अँड ट्राय टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर क्यूब पर डे पर 100. मीटर क्यूब पर डे पर 100. ट्राय टू कन्वर्ट दिस मीटर क्यूब पर डे पर 100. मीटर क्यूब पर डे पर 100. Try to get this answer. Anybody of is getting? It's okay. Otherwise, I will tell in detail.
सर युनिट्स कन्फ्युज करायला लागलेत. नेमके युनिट्स मीटर क्यूब पर सेकंद एवढे एक लिहिले तरी चालते ना डिस्चार्जला? नाही, व्हॉट एव्हर यू गेट नो, हे बेटा मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर येते तुला. मला काय पाहिजे, पर डे पर 100 मीटर पाहिजे. करा तुम्ही, ट्राय करा. नाही नाही तर मी नेक्स्ट क्लासमध्ये डिटेल मध्ये सांगतो याला, पुन्हा एक पेपर पीपीटी करून. ट्राई करो, ये आंसर लिख लो और ट्राई करो. देखो नहीं आता तो मैं करता हूं, अब ट्राई तो करो. आंसर भी दिया हूं मैं आपको, किसी को तो आ रहा क्या देखो. सर एवढंच येत आहे आन्सर. थोडंच येते. ओके, आलं का बेटा तुला? लास्ट फायनल आन्सर आलं काय? येस सर. ओके, लेट मी गो फॉर अदर क्वेश्चन प्लस ये ट्राई करो. हाँ, अब एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ. देखेंगे आप लोग कितने लोग इसमें से सॉल्व कर सकते हैं. और ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए. द फॉलोइंग, पहले अच्छी तरह सुनो आप क्वेश्चन क्या है. द फॉलोइंग डाटा वेर रिकॉर्डेड इन अ कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट. टेस्ट कौन सा है? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है. External diameter of permeability 75 mm. Head lost over a sample of length 180 mm. Over a length of 180 mm is equal to 247 mm. Quantity of water collected in 60 seconds is this much. Porosity of the sample was 44%. Calculate the coefficient of permeability of the soil. Also determine the discharge velocity and seepage velocity during the test. क्वेश्चन देखो एक बार, आप भी खुद पढ़ो एक बार. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या देखो आपको. क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. मैं चुप बोले तो मतलब नहीं है, आप करो खुद. डाटा देता क्या देखो, डाटा हर चीज दिया. लेंथ इज 180 mm, लेंथ लिया हूं मैं. हाइट ड्रॉप कितना है? 247 mm, h इज 247. क्यू दिया आपको. क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड्स, मतलब टाइम 60 सेकेंड्स, और कैपिटल क्यू 626. पोरोसिटी दिया 44%. सो पोरोसिटी किस काम को आता? आगे आता काम को, उसका जरूरत नहीं है. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. प्लीज करो ये क्वेश्चन. दिस इज ही डिड बाय व्हिच मेथड? कांस्टेंट परमेबिलिटी मेथड. Constant permeability method. Please do it.
राइट। लेट मी टेक द अटेंडेंस टिल यू ट्राई। जल्दी लेता हूं अटेंडेंस थोड़ा। 1 निकिता भागवत, 3 ज्ञानेश्वरी गोसावी, 3B क्षितिजा चौहान, 5B आकांक्षा, 8A अंजुम, 8B हर्षदा, 9B अंजलि, 10A पूनम, 12A स्नेहल, 12B स्नेहल, 13A मानसी, 14B क्षितिजा, 14A सोनाली, 14A सोनाली, 16A प्रियंका। जल्दी अटेंडेंस लेता हूं मैं, थोड़ा काम है मुझे भी। 17B नेहा, 18B चैताली, 22A शुभम, 23A सुनील, 24B वैष्णवी, 28B शिर्के ऋतुजा, 29 आकांक्षा, 30 वैष्णवी, 31A योगेश, 31B प्रतीक्षा, 35A सचिन, और 36B सुफियान, 37B समाधान, 37A सूरज, 39A वीरेश, 42B, 43A, 45B, 46A, 46A, 46B उदय, 49A रियाज, 51B अंकित, 55A उमेश, 56A शुभम, 59B अमोल, 63A it is यश, 64 केतन, 65 माउली, 66 आकाश, 48A it is शिवराज, ऐश्वर्या B23। ओके, और कोई है तो चैट बॉक्स में भी लिखते जाओ, मैं डालते जाता हूँ। 58A, 58A ओके, 36A। हाँ, थोड़ा जल्दी छोड़ना है मुझे भी, थोड़ा मेरा एक कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल, उसमें मेरा पेपर है, उसके लिए जरा जल्दी भी छोड़ना है। 36B या गिवन सुफिया। यस, वेदर यू गॉट दिस क्वेश्चन, पिछला आया क्या आंसर्स? इसको सारा डाटा दिया हूं मैं, सॉल्व भी करके रखा हूं। आपको क्या निकालना है, पहले कोफिशिएंट वेलोसिटी परमेबिलिटी निकालो, के निकालो, और के का आंसर भी दिया हूं मैं। आपको आया क्या देखो पहले, के का आंसर भी दिया हूं मैं आपको, आया क्या देखो। A48 गिवन बेटा शिवराज, 29B गिवन, जिसका लिया हो नाम वो लोग मत डालो जोली, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं आप, अगर से मैं जल्दी भी छोड़ दिया तो। आज A52 ओके, A52 इज ओके गिवन। करो ये प्रॉब्लम जल्दी करो। देखिए L दिया, H दिया, Q दिया, K इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है आपको, Q बाय T, Q है T है, इनटू L बाय H, L बाय H, L इज 180, H इज 247, लेकिन यूनिट्स देखो सब mm में रखो। उसके बाद 1 बाय A, A इज इक्वल टू भी यहां पर किया हूं मैं, तो आप सब mm में रख के वो फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट K। प्लीज डू इट, सेम सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, नया कुछ भी नहीं है इसमें।
do it. K is equal to how much? K is equal to how much? K is equal to how much? Once you get K, then you find E and then you find N and N दिया क्या आपको? नहीं दिया तो E निकालो आप. हाँ दिया ना, एनालिसिस ऑफ पोरोसिटी दिया. पोरोसिटी से E आता, लेकिन E की जरूरत कहाँ है हमको? V निकालो, उसके बाद VS करो. ये प्रॉब्लम का रेशो है, आपको ही करना है. And remember, tomorrow I am starting in the afternoon. I am having class. Don't miss it. Consolidation I will start right from beginning. आपको consolidation शुरू में समझ में नहीं आया तो बाद में कुछ समझ में नहीं आता. Okay, Snehal. Yeah, you did right. K is here. K is here. उसके बाद क्या पूछा? Determine the discharge velocity and seepage velocity. V is how much? Vs is how much? इस टाइप के प्रॉब्लम करें हम, करो. तो ऑलमोस्ट ऑल थ्री चैप्टर्स तो मैं काफी डिटेल में किया आपको, प्रॉब्लम्स भी बहुत लिया मैं. अब कंसोलिडेशन में कल पढ़ा रहा हूं, डोंट मिस टुमारोज क्लास. कॉन्सेप्ट आया ना कंसोलिडेशन का आपको, तो फिर हम जल्दी कर सकते कुछ. एक बार कंसोलिडेशन करें, शियर स्ट्रेंथ करें, उसके बाद अर्थ प्रेशर, और एक ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल कंप्लीट दीज 3. अब सभी में थोड़ा थोड़ा जो बचा, या क्वेश्चंस डिफिकल्ट है या गेट के क्वेश्चंस है, हम जनवरी फर्स्ट वीक में भी कुछ दिन क्लासेस ले सकते. इवन गेट की क्लास आपके एग्जाम के बाद भी आप इंटरेस्टेड है तो हम डेली 1-1 घंटा चुप जीटी डिस्कस करते जाएंगे, या मैथ्स भी 1 घंटा डिस्कस करें. इट्स ऑल अप टू यू, हाउ द इंटरेस्ट यू शो, हम उसका वैसा करते जाएंगे. जीटी तो करेंगे कम से कम, जो पढ़े सो है उतना आप रिवाइज करें तो आपको गेट में भी काम को आता. और गेट सीरियसली करो, एज ए एक्सपीरियंस करो, और अगर से आप क्वालिफाई हो गए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बिग अचीवमेंट है. लास्ट ईयर थर्ड ईयर में तीन लोग क्वालिफाई हो गए थे, और वो तो बहुत अच्छे मार्क्स ली थी, लैंडवे, तेजश्री. तो आप लोग भी कर सकते हैं. हाँ, ट्राई करो. नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस तो ले लो, सीरियसली ले लो. क्या गलतियां हो गए देखो, क्या सिलेबस छूट गया देखो. द सेम यू कैन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट वन. Sir, discharge velocity is equal to Q by A. Discharge by A total area. Yes, by VS is equal to V by N. काय तर दिलो की फॉर्म्युला मी तुम्हाला. Discharge velocity. हा, डिस्चार्ज व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, व्हेलॉसिटी येते तेच आहे. के आल्यानंतर बघा, के इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला? व्ही इंटू आई. हा, व्ही भेटणार तिथं, आई तर आहे की तुझ्याकडे, हो ना? yes sir. हा, आता व्ही आल्यानंतर तू पोरोसिटी काढ, व्ही एस इज इक्वल टू व्ही बाय एन. आहे की नाही? कळालं की नाही बेटा? सर पण आपण Q by A ने पण V काढू शकतो ना डिस्चार्ज काढ velocity. की, हा उलट खातीस तर खा, मला काय करायचं, काढ कस तरी काढ. क्यू इज इक्वल टू ए आलाय, तुला क्यू काढल्यानंतर पुन्हा क्यू इज इक्वल टू टी बाय काढावं लागतं, ते काढ तर काढ, तसं तर काढ. That also you can use, or K is equal to V into I पण करू शकतेस. काढ, V काढल्यानंतर पुन्हा हे काढ, VS काढ. आफ्टर दिस प्लीज हे घरात करा, हे क्वेश्चन लिहून घ्या. हे क्वेश्चन किती लोक करतात बघा, इंडिपेंडेंटली करा, याला काही विचार करणार ते बघा. येतात इन द फ्लो शोन इन फिगर, determine the ratio K1 to K2. If 4A1 is equal to A2, 2L1 is equal to L2, and drop in the head across L1 is 40% that of L2. एवढा क्वेश्चन आहे, एक क्वेश्चन लिहून घ्या,
आणि हे करून मला उद्या दाखवा. 2 सेक्शन्स आहेत. इथं कोफिशियंट ऑफ प्रोबॅबिलिटी K1 आहे, इथं K2 आहे. ह्याचा एरिया A1 आहे, ह्याचा एरिया A2 आहे. रिलेशन दिलाय त्यानं 4A1 is equal to A2 and 2L1 is equal to L2. 2L1 is equal to L2. 2L1 is equal to L2. आणि ये सगळं रिलेशन दिलाय. और क्या बोल रहा देखो, ड्रॉप हेड अक्रॉस L1 इज 40% ऑफ दैट ऑफ L2. वो भी दिया आपको, मतलब H1 इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स H2. सारे रिलेशंस दिया आपको. आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है K1 बाय K2. K1 बाय K2 इज इक्वल टू हाउ मच. याद रखो, एक हिंट देता हूं मैं आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े आप. यहां जो डिस्चार्ज है यहां पर भी वही डिस्चार्ज रहता. जो बच्चे लेट आए अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, मैं अटेंडेंस देता हूं, क्योंकि अभी 4 मिनट के बाद ब्रेक होगा. मैं ब्रेक के बाद क्लास नहीं ले रहा हूं आज, मुझे थोड़ा काम है, कॉन्फ्रेंस है मेरा, आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूं आज. जो लेट ज्वाइन हो गए चैट बॉक्स में डालो, या नहीं आपके कोई दोस्त है आके गए या बीच में आए तो मेरे को व्हाट्सएप पर्सनली करो, आपको अटेंडेंस देता हूं मैं. या कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको. अभी 52 बच्चे हैं, कोई लेट ज्वाइन हो गए तो चैट बॉक्स में अपना नंबर लिखो, क्योंकि अटेंडेंस ऑलरेडी आई हैव टेकन. अब ये प्रॉब्लम लिखो और अपना दिमाग लड़ाओ और K1 बाय K2 निकालो. ओके प्रथमेश. 21B, यस 21B हो गया सोनाली. 21A प्रथमेश. ओके प्रथमेश. और 3A ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरी आई गिवन यू. 52A, जिसका हो गया मत बोलो. 52A भी हो गया. जिसका हो गया मत बोलो, चुप रिपीट करते. तुम्हारा भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट. 15B, यस 15B गिवन वैष्णवी. 18A is also given Shraddha. 29B is already given beta. 3B already given Vaibhavi. 19B, yes 19B. okay. इसके बाद मैं नहीं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन ले लो, इसको होमवर्क करो और करके बताओ मुझे. So I am leaving half an hour earlier because I am having one of my paper I have presented in international conference Malaysia. तो उसका लाइव है, मुझे देखना है, तो इसीलिए मैं यहीं पे रोकता हूं आज का क्लास. So you take down this question, take this as homework and you can go. In the flow section in figure, determine the ratio, and tomorrow I will start consolidation. Please don't miss it. Consolidation काय आहे, स्टार्टिंगचं तुम्हाला जर कळलं तर पुढे तुम्ही आपला पण वाचून घेऊ शकता, पण स्टार्टिंग मध्ये कळायचं पाहिजे तुम्हाला. In the flow shown in figure, determine the ratio K1 to K2 if 4A1 is equal to A2, 2L1 is equal to L2, and drop in head across L1 is 40% that of L2. सर रोल नंबर 2 कौन सा बताइए कि बी? साक्षी बोल. हाँ ओके बेटा, बी. हाँ दिलो. Very good. Nikita has done this problem. Yes beta, right. Others also please try it. It is not that much difficult. ऐसे प्रॉब्लम ट्राई करो तो आपका IQ बढ़ता. और इसके बाद बंद कर रहा हूं मैं, इसके बाद मत आओ. अभी आधा घंटा टाइम है, लेकिन जल्दी छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे काम है, थोड़ा कॉन्फ्रेंस है मेरा, पेपर प्रेजेंटेशन किया है, उसका काम है थोड़ा, इसलिए मैं आपको आज आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूँ. अटेंडेंस किसी का है तो आप पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास. अटेंडेंस. और ये क्वेश्चन करो, निकिता भागवत करी, आप भी कर सकते. आपको हिंट दे रहा हूं मैं, यहाँ जो डिस्चार्ज है यहाँ पर भी वही डिस्चार्ज रहेगा. और डिस्चार्ज के यहाँ दोनों भी फॉर्मूले दिया हूं मैं, इन दोनों को इक्वेट करो और कन्वर्ट करो एक दूसरे में,
कैंसलेशन करो, K1/K2 आ जाता आपको। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।